Good morning, all of you. The previous lecture we have studied factors affecting rate of corrosion, wherein in the factors affecting rate of corrosion we have studied nature of the metal and different metals, different factors, that is nature of the environment. So in both these two areas, what are the various factors that we have studied? So till now we have studied what is corrosion, what is types of corrosion, okay, what is atmospheric corrosion, what is electrochemical corrosion, and what are the factors affecting it, that we have studied. Now further we are going to see how this corrosion can be prevented. So in order that the अगर हमें जो मेटल्स होते हैं उनको करोजन अवॉइड करना है, तो अभी हमने सब देखा कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, वेयर द करोजन कैन टेक प्लेस. एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो अगर इंजीनियर्स को कुछ मटेरियल बनाना है तो इसके लिए पहले पहले उनको सोचना होगा कि मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए, और उसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि करोजन ना, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज methods to decrease the rate of corrosion. Okay, so we have studied already this nature of environment. Now what are the various methods to decrease the rate of corrosion? We studied what are the factors which increases the rate of corrosion in the previous lecture. Now we will see what are the methods to decrease the rate of corrosion. Now in order to decrease the rate of corrosion, हमें क्या है, पहला जो है सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल. तो जो भी हम मटेरियल्स हमने देखे कि मटेरियल्स में अगर डिसिमिलर मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल्स अगर एक साथ आते हैं तो करोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद होता है प्रॉपर डिजाइनिंग. डिजाइनिंग किस तरह से होना चाहिए वो हम देखेंगे. डिजाइनिंग अगर प्रॉपर नहीं होता है, can this designing can lead to corrosion, that we are going to study in this proper designing section. फिर है use of alloys and pure metal. Now we know that pure metal, जैसे हमने factors में पढ़ा, how the what is the property of the metal. If it is pure, then it resists corrosion. But if you have impurities present, then the corrosion may increase. Also, how to modify the environment. We have seen that if it is acidic pH, then the rate of corrosion is much higher. So how we can, the environment को हम किस तरह से modify कर सकते हैं. Use of inhibition, cathodic protection method, and metallic coating. In the metallic coating, we are going to see cathodic and anodic coating, and the last one is methods of application of protective coating. So yeah, there are 8 methods of decreasing the rate of corrosion, right? From this I have highlighted one, right? Those are going to be there in the syllabus, whereas the three properties, that is C, D and E, we do not have to study in detail of this, right? So if a question is asked, state the different methods used to decrease the rate of corrosion, तब हमें ये जो 8 प्रॉपर्टीज है ये आपको बताने होंगे, स्टेट करने होंगे. लेकिन इसके डिटेल में जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो A, B, D, E and F, ये 5 टॉपिक पे ही एक डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है. Is it clear? Shall we move ahead? Yes, students? Yes, ma'am. Okay. Now, selection of the material. तो व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल. जैसे हमने कहा कि मटेरियल हमको सिलेक्ट करना है तो उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है. तो हमें मटेरियल अगर कौन सा सिलेक्ट करना है तो क्या चीजें हम ध्यान पे रखेंगे, कोई बता सकता है? व्हाट थिंग्स वी हैव टू कंसीडर
ताकि करोजन जो है वो ना हो। हमारे जो मटेरियल्स होने चाहिए वो Ma'am, किस तरह, the metal used should be corrosion resistant. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल शुड बी करोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, राइट? अब करोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए कि आपने ऑलरेडी हमें देखे कौन से मेटल्स होते हैं जो करोजन रेजिस्टेंट होते हैं, राइट? लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमें दो मटेरियल्स यूज करना पड़ता है, तो जब हम दो मटेरियल्स यूज करते हैं, दो मेटल्स यूज करते हैं, मे बी जिंक एंड कॉपर, तो क्या होगा अगर हम दो मेटल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक एंड कॉपर, तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम दो Ma'am, अलग one will अलग, act as anode and other will act as cathode. बराबर, वेरी राइट। तो अगर दो डिसिमिलर मेटल्स अगर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वन विल एक्ट एज एनोड एंड वन विल एक्ट एज कैथोड। तो अगर एनोड और कैथोड एरियाज क्रिएट हो जाते हैं तो करोजन विल टेक प्लेस। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, हमको अगर मटेरियल को सिलेक्शन करना है, तो अवॉइड कांटेक्ट ऑफ डिसिमिलर मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ करोडिंग सॉल्यूशन। तो पहला तो करोडिंग सॉल्यूशन कैन बी वाटर है, एसिड है, राइट? तो इसमें पहले तो ये हमें देखना है कि जो डिसिमिलर मेटल्स, ज्यादा से ज्यादा हम डिसिमिलर मेटल्स नहीं यूज करना है, राइट? ट्राई टू यूज ओनली अ सिंगल मेटल इफ पॉसिबल, क्योंकि डिसिमिलर मेटल्स यूज करते हैं तो उसमें एनोड और कैथोड क्रिएट हो सकता है, आइडियाज क्रिएट होता है और करोजन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एनोड मटेरियल शुड हैव larger surface area as possible, whereas the cathode metal should have a smaller area as possible. अब ये पॉइंट आपने कहाँ पे पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. एनोड, हाँ, कौन सा Hydrogen कॉन्सेप्ट? evolution of hydrogen gas and absorption of oxygen. ओके फाइन, यहाँ पे Mechanism. भी हम मैकेनिज्म्स आपने देखा जहाँ पे एनोड स्मॉल होता है और कैथोड लार्ज होता है, और दूसरी जगह पे एनोड लार्ज होता है, कैथोड स्मॉल होता है। नाउ which one should be, which is the one which is increasing the rate of corrosion, which situation will increase the rate of corrosion? ये कहाँ पे पढ़ा था आपने? एनोड के एरिया और कैथोड के पोरस, एरिया? नॉन पोरस। नहीं, सोचो जरा। जहाँ पे हमने देखा थी एनोड स्मॉल है, कंडीशंस देखे थे, देखो ब्लैक बोर्ड पे हमने पढ़ाया था, एनोड स्मॉल है, कैथोड ज्यादा है, और दूसरी जगह पे एनोड लार्जर है, कैथोड स्मॉल है। तो where the rate of corrosion will be higher, when the anode is small or when the एनोड एंड कैथोड। हाँ, एनोड शुड बी लार्ज और एनोड शुड बी स्मॉल। मैम ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखे थे। वेरी गुड, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ करोजन में हमने ये पढ़ा था, द रेट ऑफ करोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरियाज ऑफ, ऑफ कैथोड एरिया अपॉन एनोडिक एरिया। वेरी गुड, एरियाज ऑफ कैथोड अपॉन एरियाज ऑफ एनोड। इसका मतलब क्या है? एनोड रेट ऑफ करोजन कब ज्यादा बढ़ता है? एनोड अगर स्मॉल एरिया है या एनोड लार्जर एरिया है? स्मॉल। स्मॉल एरिया है ना। एनोड अगर स्मॉल होता है तो रेट ऑफ करोजन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेवलप करेगा, क्योंकि कैथोड अब्सॉर्ब करना है। तो ये सिचुएशंस बराबर होनी, ये बराबर होनी चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए कि एनोड स्मॉल होना चाहिए हमारा। यस मैम। होना चाहिए, एनोड स्मॉल होना चाहिए। No, ma'am. It should be नो ना, large. या दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक इट टू द पॉइंट दैट अगर एनोड छोटा रहता है एरिया, तो क्या होगा? रेट ऑफ करोजन इंक्रीज होगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या बताता है? एनोड मटेरियल शुड हैव लार्जर सरफेस एरिया एज पॉसिबल, whereas the cathode metal should have a smaller area as possible. तो एनोड अगर लार्जर एरिया भी है बट कैथोड स्मॉल है, कम है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि अब जो कैथोड है वो स्मॉल है। देन, तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? डिसिमिलर मेटल्स
नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एनोड मटेरियल लार्ज होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ऐसे कंडीशन आ भी जाता है कि हमको दो अलग अलग मटेरियल्स यूज करने हैं, ठीक है, तो टू डिसिमिलर मेटल्स यूज करना है जो दे आर गोइंग टू कम इन कांटेक्ट, तो हम किस तरह से ये दो डिसिमिलर मेटल यूज करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमको दो मटेरियल्स यूज करना है, लेकिन हम इसमें भी हमारा एक चॉइस रह सकता है। क्या चॉइस रहेगा, चॉइस विल बी दैट हमें ऐसे मटेरियल यूज करने हैं जिसमें दोनों में दूरियां ज्यादा ना हो, है ना, जितने ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ज्यादा लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों में डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो करोजन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वन विल एक्ट एज एनोड एंड वन विल एक्ट एज कैथोड। लेकिन दोनों में, जैसे इलेक्ट्रोफिल के केमिकल सीरीज में हमने पढ़ा है कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, देन द रेट ऑफ करोजन विल बी नॉट टेकिंग प्लेस, रेट ऑफ करोजन विल डिक्रीज, अगर डिफरेंस ज्यादा ना हो, है ना। देखो अमीर और अमीर में या गरीब और गरीब में दे आर फ्रेंड, है ना, लेकिन एक अमीर और गरीब है तो ज्यादा डिफरेंस पोटेंशियल है, ज्यादा मनी की वैल्यू जो है, डिफरेंस ज्यादा है अमीर में और गरीब में, राइट। तो इतनी ज्यादा दूरियां हमें नहीं चाहिए। अगर डिसिमिलर मेटल्स है तो क्लोज वाले इलेक्ट्रोकेल केमिकल सीरीज में, जो हमारी सीरीज में देखे हैं, तो क्लोज वाले मेटल्स अगर हम लेते हैं एक के पीछे एक, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होगा एंड देयरफॉर द करोजन विल नॉट टेक प्लेस। तो तीसरा पॉइंट क्या बताता है, द टू डिसिमिलर मेटल्स इन कॉन्टैक्ट should be close as possible to each other in the electrochemical series। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में जो मेटल प्लेस किए हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन से क्लोज बाय है, तो जो क्लोज है उनको हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो द थर्ड पॉइंट इज दैट the metals, the dissimilar metals should be close to each other in the electrochemical series. Now, what is the third point or the fourth point? Whenever the direct joining of dissimilar metals is unavoidable, इसका मतलब है अगर हमको दो मेटल्स को कांटेक्ट करना है, दो मेटल्स को ज्वाइन करना है, राइट, तो ये ज्वाइन कैसे करते हैं, हम दो मेटल्स को ज्वाइन करना है या दो कुछ पार्ट को ज्वाइन करना है, तो क्या करते हैं, एनीवन, किस तरह से ज्वाइनिंग करते हैं हम, वेल्डिंग। या वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो वेल्डिंग करने की वजह से क्या होता है, इट में क्रिएट impurities because of the different metals present। तो जहां पे ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग में हम देखते हैं वेल्डिंग से जनरली ज्वाइन होता है, लेकिन ये अवॉइड करना है, क्या करना है उसको, किस तरह से अवॉइड करते हैं, इसके लिए एन इंसुलेटिंग फिटिंग मे बी यूज फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल। तो अगर हमको ज्वाइनिंग करना है तो ज्वाइनिंग को वेल्डिंग से ज्वाइन करने से बेटर है कुछ वो इंसुलेटिंग स्क्रू या इंसुलेटिंग फिटिंग जो मिलते हैं वो यूज करें फॉर ज्वाइनिंग द टू मेटल विच इज ऑफ अ corrosion resistant material। So these are the four points for selection of material। Now let's see the improvement of design या proper designing कैसे कैसे। तो जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी मटेरियल हमको बनाना है, तो उसका एक डिजाइन रहता है ना, स्ट्रक्चर रहता है। तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंजीनियर्स काफी मेहनत करते हैं किस तरह से होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ लेट्स सी, द डिजाइन शुड प्रोवाइड इजी क्लीनिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द कॉर्नर एंड बेंड इन द मेटालिक इक्विपमेंट, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें शार्प कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं या एजेस प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, देखो डायग्राम में, सपोज ये एक डिजाइन है, ये एक ऐसे इस तरह से बनाया है, ये दो अलग अलग मटेरियल्स है और इसको हमने ज्वाइन किया है वेल्डिंग से, दिख रहा है आपको, वेल्डिंग से ज्वाइन किया है। सिमिलरली यहाँ पे वेल्डिंग से ज्वाइन किया, राइट। तो ये दो कॉर्नर, ये कॉर्नर है शार्प कॉर्नर विच इज प्रेजेंट एंड
दिस इज द वेल्डिंग करके ज्वाइन किया है। कोई बता सकता है कैन दिस डिजाइन लीड टू करोजन एंड इफ yes, why? I hope you are writing in your books also, na, making notes also. Yes. Ma'am, because that part will not get easily cleaned. Yes, very nice. Yeah, my question was, are you writing, students, in your book? Yes, ma'am. Okay, fine. अगर कुछ लिखने को टाइम लगता है तो बोल दीजिएगा। तो अगर आपने देखा यहाँ पे जब शार्प कॉर्नर्स होते हैं तो इसका इजीली क्लीनिंग नहीं हो पाएगा। पहले तो यहाँ पे दो अलग अलग मेटल्स को ज्वाइन किया है वेल्डिंग से, और अगर ये ओपन एरिया है तो इसके ऊपर डर्ट आ सकती है एंड इट इज एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर ऑल्सो, या ऑयल या ग्रीस भी, अगर मशीन्स है तो ऑयल ग्रीस भी यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो सकती है, जिसकी वजह से दैट दिस लीड टू करोजन, राइट। तो इस तरह का डिजाइन, दिस सच टाइप ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड एज द पुअर डिजाइन। इस तरह से शार्प कॉर्नर्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, तो इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जो है ये डिपॉजिट हो रहा है ये कॉर्नर पे, यहाँ पे ना हो। एनीवन? मैम फिटिंग करके। हाँ, उस पे जैसे हमने पढ़ा कि उसको हम कोई इंसुलेटिंग से जो है उसको हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिट भी करेंगे तो फिट करेंगे तो कि ये कॉर्नर्स नहीं होना है। तो ये कॉर्नर्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वाटर या ऑयल जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो ये डिजाइन को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? वेल्डिंग। नहीं, वेल्डिंग तो नहीं ना बच्चा। मैम वो कर्व कर देंगे। कर सकते हैं। देखो यहाँ पे के कॉर्नर पे डिपॉजिट होने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है। अगर इसका हम एंगल चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये जो है इसको हम कर्व करते हैं इस तरह से। तो कर्वेचर में क्या होगा, कर्व में वाटर या कुछ भी इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होने के चांसेस कम रहेंगे, और हम इसका जो वेल्डिंग किया है वो आगे यूज किया है। तब तो बताने का ये तात्पर्य है कि जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर का डिजाइन इस तरह से ना हो करके उसको हम अगर बेंड का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग दे देते हैं तो दिस विल डिक्रीज द रेट ऑफ करोजन, right? So the sharp corners should be avoided in this way, and recess should be avoided. Now what do you understand by recess? As you can see in this diagram, ये एक दो मटेरियल्स है और इसको किस तरह से ज्वाइन किया, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड एज द recess। एक्स्ट्रा पार्ट जैसे हमारे घर में हमारे गैलरीज होती है, दैट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज अगेन यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। तो कॉर्नर क्रिएट होने की वजह से वहां पे करोजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इम्पोर्टेंट है, पहले तो अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है पहले तो हमको मटेरियल्स देखना है, किस तरह से कौन से हम मेटल्स यूज करेंगे, राइट। वो होने के बाद जब हम प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी इंजीनियर को प्रोडक्ट बनाना है तो उसका पहले फिर मशीन पार्ट का डिजाइन देखना होगा। डिजाइन पे डिजाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें कॉर्नर्स ना हो, चार कॉर्नर्स ना हो और रिसेस ना हो, एक्स्ट्रा एरियाज ना हो मटेरियल का जो वेस्ट जा रहा है लेकिन वो फिटिंग में यूज किया जा रहा है तो वो वेस्ट होता है। तो इफ दिस इज द कंडीशन देन such type of design is called as the poor design. Now in the poor designing, one of also the thing is how the designing of the material is kept. Now metallic equipment should be supported on legs to permit air circulation and to avoid the formation of damp areas under the equipment. Fine. ये कहता है कि जो भी हम इक्विपमेंट या जो भी मशीन्स रखते हैं, हम यूज करते हैं, उसको किस तरह से होनी चाहिए, उसको जो डिजाइनिंग होता है इट शुड नॉट बी डायरेक्टली प्लेस ऑन टू द ग्राउंड लेवल। कोई एग्जाम्पल बता सकता है इस तरह का एग्जाम्पल जहाँ पे हम सपोर्ट देते हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल पे ना हो?
मैम वॉशिंग मशीन। वेरी गुड, वॉशिंग मशीन्स है और रेफ्रिजरेटर है। तो हमारे घर में जो चीजें हैं, अगर हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम वॉशिंग मशीन को स्टैंड के ऊपर हमेशा रखते हैं या फ्रिज को भी स्टैंड के ऊपर रखते हैं, अगर हम लोग डायरेक्टली फ्रिज को फ्लोर पे रख देते हैं इस तरह से, सपोज ये हमारा फ्रिज है, दिस वन, ये हमारा फ्रिज है और ये हमारे फ्लोर है, ठीक है, इस तरह से रख देते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, एनीवन? ये हमारी फ्लोरिंग है और ये फ्रिज है। मैम एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। बराबर, एयर Yes, ma'am. सर्कुलेशन होगा। और अगर ये महीनों तक फ्रिज ऐसे ही फ्लोर के ऊपर ही रखा गया है और 1 महीने के बाद हम उसको निकाल देते, तो क्या होगा, पूरा डर्ट मैम है ऑन ना, द ऑन द डस्ट फ्लोर विल पे, फॉर्म। डस्ट, पूरा डस्ट होता है। और जो भी घर के जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, कभी कभी ये ना और सब यहाँ पे खराब हो जाता है, कचरा ये सब जमा हो जाएगा, राइट? So because of the air circulation is not there, then what will happen, this is fridge भी तो obviously it is made up of metals and alloys, तो क्या होगा, यहाँ पे corrosion start होता है। तो similarly goes for the washing machine also। तो इन चीजों को डायरेक्टली अगर हम फ्लोर पे रखते हैं, तो the deposition of the waste oil, grease, water will take place and this will lead to corrosion। So do you think this is a good design, this one? No, this is a poor design। अगर हम फ्लोर पे रखते हैं तो this is a poor design because it prevents free circulation of air। तो हम जहाँ पे फ्रिज रखते हैं उसके आजू बाजू में हम देखते हैं थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। पहले तो फ्रिज जो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज होता है तो ऑलरेडी हीट, एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए हमको एयर थोड़ा सर्कुलेशन के लिए होना चाहिए। एकदम पैक्ड फ्रिज नहीं रखनी चाहिए, साइड से भी और नीचे से भी। अगर हम नीचे से रखते हैं तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिपॉजिट करोजन कैन टेक प्लेस। तो व्हाट इज द बेस्ट डिजाइन? ऐसे कोई भी मशीन्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, डायरेक्टली फ्लोर पे ना रखते हुए उसको एक स्टैंड पे या लेग्स पे रखा जाता है। तो जब लेग्स पे रखते हैं तो क्या होगा, एयर सर्कुलेशन कैन टेक प्लेस एंड ऑल्सो द क्लीनिंग इज वेरी इजी। वी कैन क्लीन द लोअर पार्ट ऑफ दिस material and therefore the deposition of water and oil also will not take place, क्योंकि इसका cleaning हम हमेशा easily कर सकते हैं। So this is called as the best design because it allows free circulation of air and proper drainage and easy washing. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Okay, so they are basic easy concept to understand, not a big one. Mind. So we have done two, selection of materials and proper design. Now we are going to proceed further to a very, very important question. Topic, we can say, that is cathodic protection, which is generally asked in every semester for around 5 marks. You have noted down the previous slide. Yes, ma'am. Okay. Now let's see what is cathodic protection. Now cathodic protection is classified into two. There are two types of cathodic protection. One is called as sacrificial anodic protection method and the second one is called as impressed current cathodic protection. ठीक है, अब ये दोनों के जो है हम स्टडी करते हैं किस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, now let's see the first one which is called as sacrificial anodic protection method. Now suppose मेरे पास एक ये है, क्या है, एक iron pipe है, this is an iron pipe, okay, and it is submerged into the soil. Underground pipelines होती है ना, okay, this is the soil दिखा रही हूँ मैं,
और ये पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है विच इज मेड अप ऑफ आयन मटेरियल। क्या होगा मुझे बताओ इसका? दिस इज अ आयन pipeline which is submerged into the soil. Can anyone tell me Ma'am, what will happen? if the Yes, soil yes. is dry, no corrosion will take place, and if the soil is wet, then the corrosion Hmm. will take place. We'll consider it as a wet soil. It will corrode. Corrode. So it will corrode. So what it will form? Fe. It will corrode, matlab it will undergo loss of electrons, right? Oxidation. Oxidation, right? So Fe will give me what? The Fe metal will undergo oxidation to give you Ferrous hydroxide. okay. That is the furthest step. I'm just asking the first reaction of oxidation, beta. Fe2 plus 2 electron. So Fe gives you Fe plus 2. So it will form Fe ions and electrons are formed. So this is what is the reaction we know. Now we have to protect this. ये हमारा जो पाइपलाइन है आयरन का बना है, वाटर पाइपलाइन में अंदर भी वाटर ही प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसका करोजन होगा। तो हमें क्या करना है? इसको प्रोटेक्ट करना है। तो किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई बता सकता है किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको? मैम बोलो बोलो। Yes. How can we protect this metal? This Ma'am, pipeline? use another metal. Ma'am, using magnesium metal. अच्छा, आप लोग Copper. पढ़ के आए हो, ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्या? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स नाइस। तो व्हाट वी कैन डू इज बहुत सारे मेथड्स है, जैसे हम इसको पेंट कर सकते हैं पहले से पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग ये तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो पेंटिंग कर सकते हैं। या और एक है सिंपल वाला जो मेथड है जहाँ पे हम इसको, ये जो मेटल बना है इसको, ये क्या कर रहा है, द Fe is going to get oxidized, मतलब this is acting as anode, right? Now this is acting as anode, that is why the corrosion is taking place. तो हमें क्या करना है, इसका रोल चेंज करना है ना? तो जो भी हीरो लोग होते हैं वो कंटिन्यूअसली वही रोल कर करके बोर हो जाते हैं, तो क्या चेंज करते हैं वो? हीरो से क्या बनते हैं? रोल चेंज करते हैं ना, हीरो से फिर विलन बन जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो Fe है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज एनोड, विच इज एक्टिंग एज एनोड। हमें इसका रोल चेंज करना है। रोल चेंज करना है मतलब क्या बनेगा फिर? ये इसको एनोड नहीं कहेंगे, फिर क्या बनेगा अगर इसका रोल चेंज करना है मुझे? कैथोड। 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 तो बराबर ये एनोड का रोल प्ले कर रहा है, इसको मुझे एनोड का रोल चेंज करना है, इसको मुझे कैथोड करना है। तो ये कैथोड करना है इसको, तो मतलब कैथोड क्या करेगा? इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है? तो ये Yes. अगर मुझे कैथोड, इसको अगर मुझे रोल चेंज करके कैथोड बनाना है तो दूसरे किसी को तो एनोड बनना होगा ना, Yes, ma'am. Yes. बराबर है? Magnesium हाँ, बनेगा मैम। बराबर। तो अभी ये अगर इसका मैंने रोल चेंज किया है, एनोड को, उसका पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एक्टिंग एज एनोड। लेकिन हम ऐसा रोल चेंज करेंगे क्या? इट शुड एक्ट एज कैथोड। बट इफ दिस हैज टू एक्ट एज कैथोड, आई वांट समवन शुड एक्ट एज एनोड। तो वो कैसा मटेरियल होना चाहिए जो एनोड की तरह एक्ट करेगा? तो आयन से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए या वीकर होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन से उसका कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? मैम ज्यादा कम। होना चाहिए।
ज्यादा होना चाहिए ना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब उसकी ताकत, लूज इलेक्ट्रॉन होने की जो ताकत होती है वो आयन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स है जिनकी जो कैपेसिटी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है वो आयन से भी ज्यादा है? तो कौन से है? फॉर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम, Magnesium, Copper. देन वी हैव जिंक है, zinc. Yes, ma'am. एल्यूमिनियम। ओके, तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम है, ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हायर देन आयरन। तो क्या किया जाता है, ये पाइपलाइन को बाय यूजिंग अ मेटालिक वायर इट इज कनेक्टेड टू अ मैग्नीशियम ब्लॉक। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम यूज करते हैं, तो एक छोटा सा मैग्नीशियम ब्लॉक रहता है, ये मैग्नीशियम ब्लॉक के साथ उसको अटैच कर देते हैं, दिस इज मैग्नीशियम। ये आ गया हमारा हीरो। Now, this magnesium is having higher oxidation potential with respect to Fe. So, magnesium is acting as what? Anode. Anode. Very good. So, magnesium is acting as anode and now iron is acting as cathode. So, this magnesium will form Mg plus 2 electrons and these electrons will be taken up and this will be taken up by the Fe and therefore it will act as cathode. Right? So, this is one of the protection method where the metal which is acting as anode is converted to cathode. तो हमने किसको लाया यहाँ पे, किसकी एंट्री हुई यहाँ पे? मैग्नीशियम, राइट? तो मैग्नीशियम आया, नाउ मैग्नीशियम इज एक्टिंग एज एनोड एंड मैग्नीशियम इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मैग्नीशियम ब्लॉक क्या होगा धीरे धीरे? देखो ये मैग्नीशियम आयंस जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम आयंस यहाँ पे सॉइल में जाएंगे ना, तो क्या होगा, इसकी जो हमने ब्लॉक रखा है धीरे धीरे इसकी साइज जो होती है वो डिक्रीज होते जाएगी, है ना? तो ये डिक्रीज होते जाएगी, डिटोरिएट होते जाएगी ना, क्योंकि ये करोजन हो रहा है इसका, तो इसकी इसकी जो क्या बोलूंगी मैं, साइज है वो डिक्रीज होते जा रही है धीरे धीरे। और कुछ महीनों बाद क्या होगा, कुछ महीनों बाद ये पूरा मैग्नीशियम जो है वो डिटोरिएट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब पूरा ये खत्म हो जाएगा, ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, तो विल द आयन गेट प्रोटेक्टेड फर्दर ऑल्सो? No, then it will start acting as anode. वेरी गुड। तो जब तक ये मैग्नीशियम है तब तक ये आयन प्रोटेक्टेड है, जब ये मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा डेफिनेटली अगेन इट विल एक्ट एनोड और करोजन हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे मैग्नीशियम आ रहा है यहाँ पे आयन को बचाने के लिए, इसके लिए इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल, ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना मैग्नीशियम, एक्टिंग एज एनोड, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाद में वो कंप्लीटली डिटोरेट हो जाता है, इसके लिए इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल and it is acting as anode. So magnesium is acting as anode, so that is what is called as sacrificial anodic protection method. तो जब ये मैग्नीशियम कंप्लीटली खत्म हो जाता है तब ये पाइप जो है वापस एनोड की तरह काम करेगा और करोजन वापस होगा। तो ये मेथड में ड्रॉबैक क्या है कि कुछ महीनों बाद हमें एक नया मैग्नीशियम ब्लॉक से रिप्लेस करना होता है, तो इसको बार बार ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि उसका कंटिन्यूड प्रोटेक्शन हो। ओके, तो what is sacrificial anodic protection method? In this method, the metallic structure which is to be protected from corrosion is connected to a very important point, more anodic metal by a wire, so that the entire corrosion is concentrated on this more active metal. The more active metal, कौन सा है more active metal हमने यूज किया था? Magnesium. Very good. The Magnesium. more active metal loses and gets corroded, and this metal is called sacrificial anode. Generally, the metals commonly employed as sacrificial anode are magnesium, zinc, aluminum, and their alloys.
So this is what I mean to show you by the diagram. We have a pipeline. Don't draw this. We have a pipeline which is submerged into the soil, right? And it's an iron pipeline which is acting as anode, but we are going to make it to act as cathode, where this block is connected to a magnesium, where this is connected by a wire to a magnesium block, and this magnesium block is acting as anode. Therefore, we have Mg plus 2 plus 2 electrons. So this is the diagram that you have to draw in the examination in order to explain what is sacrificial anodic protection on galvanic protection. So we have the iron pipe, जैसे मैंने diagram में बता रही थी, which is acting as cathode. This is connected by an insulating copper wire to a magnesium block which is acting as anode. And this is the reaction. What are the applications? कहाँ पे use होता है? Generally, जो भी submerged materials होता है, important applications of sacrificial anodic method include protection of buried pipeline. जो soil में buried pipelines होते हैं, उनको इस तरह से protection किया जाता है. Underground cables होते हैं या marine structures होते हैं. This is protected by using sacrificial anodic protection method. Have you drawn this diagram, all of you? Draw this diagram, please. Yes, ma'am. And write down the applications also. जैसे मैं लेक्चर्स में नोट्स में आपको डिक्टेट करती हूँ, इस तरह से आप आपके नोट्स बनाइए, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए और एप्लीकेशंस लिख दीजिएगा, विच आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. जैसे हो जाता है आपका लिखा तो बता दीजिए. Is it done? Should I proceed ahead? No, ma'am. Okay, I'll wait. Hardly 19 students have joined. Why so less attendance, Farhan? I don't know, ma'am. Okay, ठीक है. Let it be. No problem. क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो आ ही जाएगा. Done, ma'am. Okay. So I'll show some examples of how it is done. As you can see, this is one of the slide where such type of pillars which are there, the iron rods, the iron pillars which are there, they are protected in this way by using sacrificial materials. This is one of the slide which I got. This is, we can see this is a water main pipeline. Okay, और ये bottom pipeline which is submerged into the soil. इसको इस तरह से वायर से कनेक्ट किया जाता है जो हमने डायग्राम में देखा था, और ये सैक्रिफिशियल एनोड है. जिस तरह से हमने ब्लॉक देखा था, मैग्नीशियम ब्लॉक या जिंक ब्लॉक यूज करते हैं, और इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है. वेयर this block acts as anode and it protects the pipe. जब ये डिटोरेट हो जाता है तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय अ न्यू ब्लॉक. Fine. So this was about the sacrificial anodic protection method. Now we will study a second method which is
called as impressed current cathodic protection. तो ये जो पहला मेथड था सैक्रिफिशियल में, इसमें क्या ड्रॉबैक था जो हमने पढ़ा? Ma'am, we have to change the block or we have Right. to again attach the block. रिप्लेसमेंट करना पड़ता है बार बार वो मटेरियल ma'am. का, राइट, दैट वाज अ मेन ड्रॉबैक। अभी बार बार उसको कौन देखते बैठेगा ना, इसको रिप्लेस करना है, ये खत्म हो गया है, तो इसके लिए कुछ और सोचना था। तो क्या और सोचना था? तो अगेन सपोज इफ वी टेक अगेन अ पाइपलाइन इज देयर, इट इज आयरन पाइपलाइन, ओके। अब इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो at a certain oxidation potential the Fe will form Fe ions and electrons, ये हमें तो ऑलरेडी पता है। Fe plus 2 electrons form करेगा and it is acting as anode। तो हमें अभी दूसरी मेथड, पहली मेथड तो हमने देखी सैक्रिफिशियल की, लेकिन सैक्रिफिशियल में ड्रॉबैक क्या था, उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कुछ चीज सोच सकते हैं कि ये एनोड को हम कैथोड, ये तो पता है कि एनोड को प्रोटेक्शन करना है, मतलब Fe को इट शुड एक्ट एज कैथोड, इसका रोल चेंज करना है, इट शुड एक्ट एज कैथोड, एक रोल है, राइट। तो पहले अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो हम किस तरह से दूसरी मेथड से कुछ कर सकते हैं क्या, ताकि ये जो एनोड की तरह काम कर रहा है ये एनोड की तरह काम ना करे, ये इलेक्ट्रॉन्स ना दे, ताकि इसकी करोजन ना होगा, नहीं होगा। एनीवन कैन टेल मी? सोच सकते हो आप, नाम से भी कुछ पता चल रहा है आपको क्या हम कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं। DC source. मतलब क्या होता है बेटा, मतलब क्या होगा डीसी सोर्स से? Yes, suppose as Farhan is saying, we attach this to the DC source, क्या होगा फिर? डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट हम पास कर रहे हैं ना डीसी सोर्स, Path through of current. हाँ। तो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ द डीसी सोर्स? सी व्हाट विल हैपन, वेरी राइट व्हाट यू सेड। डीसी सोर्स, हम अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, Fe इज एट अ सर्टेन पोटेंशियल, Fe क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एट अ सर्टेन पोटेंशियल, राइट। नाउ तो ये इलेक्ट्रॉन जितना एट अ सर्टेन पोटेंशियल दे रहा है, सपोज इट इज प्रोवाइडिंग एट अ पोटेंशियल ऑफ 0.5 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया ना, ईएमएफ ऑफ जिंक, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सपोज अगर Fe का पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट, तो कैन वी नलिफाई दिस 0.5 वोल्ट? इसलिए पोटेंशियल एट 0.5 वोल्ट इट विल स्टार्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन। So if we supply a current higher than 0.5 volts, will it nullify the current which is passing from here? It will nullify the corrosion current, okay, and there will be zero potential. So the amount of current which we are passing from a direct source will nullify the corrosion current, and therefore it will stop the corrosion of this metal. Clear? And this will be a continuous supply of DC source can be done. Now, is it complete circuit? No, ma'am. It is not complete circuit. So how we are going to complete this? मैम इसको मेटल से कनेक्ट करेंगे। बराबर, तो इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है ना सर्किट को, तो इसको वापस हम किसी मेटल से हम ज्वाइन करेंगे, राइट। नाउ अभी हम इसे जो सर्किट कंप्लीट, अभी इसका काम क्या है,
इसका ये जो मटेरियल हमने क्यों रखा है, खाली सर्किट कंप्लीट करने के लिए. Will this should act as anode? Is the requirement over here that it should act as anode? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do we want that this should No, ma'am. deteriorate? Right. हमें इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, बताओ मुझे. No, ये ma'am. No, मटेरियल जो, हाँ, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. इलेक्ट्रॉन कहाँ से No, मिले ma'am. मुझे? डीसी सोर्स, current से DC source. है ना. करंट से हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, and this is accepting the electron. Now this is acting as cathode and it is getting protected, right? So I want this material. Why I want this material? Only to complete the circuit. तो ये मटेरियल मुझे कैसे होना Yes, ma'am. चाहिए, हाँ, ये कैसा होना चाहिए, इसका कुछ काम है यहाँ पे. Is it acting as anode? Is it acting as cathode? No, ma'am. Acting as No. anode, ma'am. Is this acting as anode? तो फिर मैं पहला जैसे मैग्नीशियम था, if it is acting as anode, ये भी खत्म हो जाएगा ना फिर. तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए ताकि उसका ना एनोड हो ना कैथोड हो. इस टाइप का मटेरियल जो होता है, ओके. So sorry. So we want such type of material where it can act as anode. Yeah, very right you said. So this is acting as anode. But if this is acting as anode now, but we are using a material which is a graphite, which is made up of graphite. Graphite is an inert material. Okay. So we are using a graphite which is called as the inert material. And inert material, I hope you understand, there is no reaction which is taking place, and this is covered. अभी इसको हमने soil, सब soil है आसपास में, soil में जो है उसमें रखा है, तो इसको directly soil से contact ना हो, that is why it is covered with a back film of gypsum. It is covered with a back film of gypsum ताकि इसको directly उसमें contact ना हो और खराब ना हो इसके वजह से. So this is covered with a black film of gypsum. Right? So this is called as the impressed current cathodic protection. Again, I'll explain you. We have the pipeline. Pipeline जिसको हमको protect करना है. It is acting as anode. So in order that it should be protected, it is connected by a DC source. तो DC source के वजह से जो corrosion current होता है वो nullify हो जाएगा. Because of this, the DC source, the electrons will get nullified and the corrosion of the metal ion will stop. In order to complete the circuit, this DC source is further connected to an inert material of graphite. So there will be no reaction मैम taking दूसरा place of मटेरियल भी यूज कर graphite. सकते हैं ना. हमको inert material ही चाहिए, right? Graphite which is made up of carbon content. So you know, non-metal sort of हमें use करना होगा ताकि reaction ना हो इसका. So because हमें खाली इसको क्या करना है, we have to only complete the circuit. And this way the graphite is covered with a back film of gypsum ताकि जो है it will not get deteriorate because of the direct contact with the soil. So let's see further. Impressed current cathodic protection for larger structures. Galvanic anodes can't economically deliver enough current to provide complete protection. In this method, an impressed current is applied in opposite direction to nullify the corrosion current and convert the corroding metal from anode to cathode. ICCP यही है, impressed current cathodic protection का short form दिया है ICCP. ICCP systems use anodes connected to a DC source. This current is given to insoluble anode like graphite, stainless steel, or scrap iron buried in soil. The negative terminal of DC source is connected to a pipeline to be protected. The anode is kept in backfill
to increase the electrical contact with the surrounding soil. So I hope you can see the image on the screen. So here we have a galvanic cell and here we have the impressed current cell, right? So as you can see in the पहला में गैल sacrificial cell में हमारे पास क्या है, Fe plus carbon का cathode, it is acting as cathode, and we have a magnesium anode which is acting as sacrifice and corrodes preferably to the steel. तो ये तो स्टेनलेस स्टील है, Fe प्लस कार्बन का स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है. So this is connected to the magnesium which acts as anode, और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है and it goes to this cathode. So this is the sacrificial cell. Impressed current cell में आपको दिख रहा है यहाँ पे, we have the same Fe प्लस कार्बन का ये जो मटेरियल है, दैट इज स्टेनलेस स्टील को हमको प्रोटेक्ट करना है सपोज. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सोर्स, डीसी सोर्स हम सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा. एंड देन वी हैव द प्लैटिनम एनोड. प्लैटिनम एनोड स्टेज साउंड because it does not give up electron. Similarly, you can see one of the image on the screen. So how the transfer of electrons takes place and this pipeline is getting protected. So this is a diagram which is expected to be drawn in the examination. We have this is the pipeline which is acting as cathode. This is submerged into the soil, and this pipeline is connected to a DC source. Now this DC source is connected to an inert material which is made up of graphite, which is acting as anode, but it does not. It is an मैम inert ग्रेफाइट की material. जगह पे प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं ना, हाँ, insoluble प्लैटिनम anode भी के यूज कर सकते हो जी. इनर्ट मटेरियल आप कोई भी यूज कर सकते हो, लिए। यस ग्राफाइट मैम, है, insoluble प्लैटिनम anode, yes. है. हाँ, तो मेन है, इसको कवर्ड किया है बैक फिल्म ऑफ जिप्सम, एंड इट इज एप्लीकेशंस है बरीड स्ट्रक्चर्स सच एज टैंक, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, ओपन वाटर बॉक्स कूलर में यूज किया जाता है. तो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट डाउन दिस एग्जांपल. मैम आपकी दोनों वॉइस में बहुत स्लो आ रही है. अभी स्लो आ रही है कि पहले से आ रही थी? अब नो सही आ रही मैम है. प्रॉपर है. अब सही है. अच्छा, तो फरहान के पास नेटवर्क कम हुआ शायद से. नो मैम, मेरा नेट पर एकदम फुल है मैम. ओके ओके फाइन, ठीक है. अब ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और ये एग्जांपल्स लिखिएगा आपके बुक मैम में. ये इसका दोनों में एप्लीकेशन, से ये एप्लीकेशंस है ना नीचे, बरीड स्ट्रक्चर्स में यूज अच्छा होता है, यस. जैसे टैंक्स में, पाइपलाइंस, ये एप्लीकेशंस है. तो ये दोनों में से एक श्योर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन. तो जैसे हो जाता है आप मुझे बता दो.